एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राची क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ANC न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी, जो कि है एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर है ये वो 100 मार्क्स का है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट में बताना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ये इसका पार्ट 1 है, जिसके अंदर मैं इस वीडियो में आपको अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, जिसके 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दूसरे जो पार्ट्स मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये यूनिट 1 के अंदर आता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर बॉडी। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूछा है। ये आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 मिल जाएगा। आपको आंसर भी मैं इसके प्रोवाइड करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज द फूड सोर्स एंड डिस्क्राइब द फंक्शन परफॉर्म बाय द फॉलोइंग इन आवर बॉडी। विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन। 12 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आपको यूनिट 4 में मिलेगा। आंसर सबके प्रोवाइड करूँगी मैं। What is balanced diet? Enumerate steps you would follow while planning a balanced diet. 8 marks का question. Discuss the role of the following factor in meal planning. Economic consideration, food acceptance के रोल बताने हैं meal planning के अंदर। 6 marks का ये क्वेश्चन है। Explain how energy requirement for adult change with activity pattern and age. Give the RDI for energy. 8 marks का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। What are the different kind of supplementary foods you would recommend for children 6 to 12 month of age? Explain giving example. 6 marks का ये क्वेश्चन है। Explain the causes of food spoilage. Again 6 marks. Explain the effect of malnutrition on infection. 5 marks. Discuss the dietary modification which are needed in diabetic diet. 7 marks. Discuss the different factors which need to be considered while planning meals for a pregnant woman. 8 marks. Explain the role of food budgeting in keeping expenditure on food within the limit of one income. 10 mark question. Length इस क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, अप्रॉक्स 2 पेज. List the food included in the bodybuilding food group. 5 marks. Briefly describe the function of food in our body. 8 marks. Why is it important to include dietary fiber in a diet? 6 marks. Question 16. Describe the process of digestion, absorption and utilization of protein in our diet. 6 marks का question, most important question. Enumerate the factors that influence meal planning. Give appropriate examples. Define the term budget. Discuss the factors that will influence a family food budget. What is adolescence? Describe the characteristics of adolescence. 4 marks. Define the term food nutrient. Nutrition and health. Discuss the relationship between food, health and disease. Enumerate the nutrient need of pregnant women in the 3rd trimester of pregnancy. 6 marks. Define elderly. Describe the psychological changes occurring during this phase. 8 marks. Explain the dietary management of the hypertension in adult. What is growth monitoring? Why is it useful to assess the nutritional status of children? 6 marks. What is food adulteration? List any 5 adulterants found in food indicating their health hazard. Enumerate the causes of food shortage. Briefly explain the principle of food preservative. 6 marks. Question 28. Social, psychological and economic factors determine the acceptability of food. Justify the statement giving appropriate example. 8 marks. Recommended dietary allowances for adult are based on activity level, sex and body weight. Explain the statement giving appropriate examples. Explain the measures you would adopt to prevent food wastage. Approx 30 questions हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने देखे हैं और काफ़ी बार रिपीट होते हैं। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस के मैंने आंसर प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हेल्थ का जो क्वेश्चन आया था ये यूनिट 1 में आपको मिलेगा। न्यूट्रिशन
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसके फंक्शंस और उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स वगैरह पूछे गए थे। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन जो कि है एनर्जी गिविंग फंक्शन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। फैट को यूटिलाइज करने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। एंड उसी क्वेश्चन के अंदर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा गया था, जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है। नेक्स्ट जो पूछा गया था प्रोटीन के बारे में, उसके फंक्शन पूछे गए थे और प्रोटीन का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पूछा गया था। प्रोटीन के फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है प्रोटीन, वहीं एनर्जी देने का भी काम करता है प्रोटीन। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विटामिन ए के बारे में पूछा गया है। विटामिन ए के फंक्शंस, बेसिकली उसके जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और जितनी भी डिसीजेस होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है विटामिन ए बॉडी के अंदर। ये पाया जाता है मिल्क में, बटर में, घी में, एग में और फिश में। सेकंड जो है वो है आयरन। आयरन के बारे में पूछा गया था, इसके फंक्शंस, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये जब भी हमारी मसल को कंट्रैक्ट करने की ज़रूरत होती है ये उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये पाया जाता है होल व्हीट में, राइस फ्लेक्स में, बाजरा में, लीफी वेजिटेबल्स में और रागी में। आयोडीन, आयोडीन बेसिकली पाया जाता है एग के अंदर, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश के अंदर या शेल फिशेस के अंदर। नेक्स्ट पूछा गया था कैल्शियम, कैल्शियम के फूड सोर्सेस। कैल्शियम के बेसिकली फूड सोर्सेज जो होते हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कर्ड, खोया, छेना, और जितने भी कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली मिल्क के अंदर ही पाए जाते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, वो बोन्स को और हमारे टीथ को डेवलप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आंसर हमारा जो है वो बैलेंस डाइट को लेकर है, जिसके अंदर स्टेप्स बताने हैं एक बैलेंस डाइट के। उसके अंदर एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, और उन फूड्स को क्लासिफाई करा है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं जो कि हैं सीरियल और रूट्स एंड ट्यूबर। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी जो होते हैं वो होते हैं शुगर, जैगरी। और फैट रिच फूड जो होते हैं वो होते हैं फैट्स एंड ऑयल। नेक्स्ट जो है ग्रुप है वो है हमारा बॉडी बिल्डिंग ग्रुप, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जिसके अंदर मीट, मीट प्रोडक्ट्स, फिश और एग्स आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ग्रुप 3, जो कि है प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड, जिसके अंदर येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स आते हैं, सिट्रस फ्रूट्स एंड अदर्स आते हैं। हमारा वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। नेक्स्ट फूड एक्सेप्टेंस।
आंसर 6। आंसर 8 है हमारा कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, नेचुरल फूड एंजाइम्स आते हैं जो हमारे फूड को स्पॉइल करने का काम करते हैं। इंसेक्ट्स एंड रॉडेंट्स होते हैं। आंसर 9 है हमारा इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन। इसके अंदर फर्स्ट है रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, effect on the integrity of skin and mucous membrane, PEM and worm infestation, आंसर 10 है हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन विच आर नीडेड इन डायबिटिक डाइट। एक डायबिटिक डाइट जो होती है उसके अंदर डाइट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, उससे रिलेटेड ये आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। इस वीडियो में मैंने आपको आंसर 10 तक दे दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नेक्स्ट जैसे ही इसका पार्ट 2 डलेगा आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या आती हैं कि कैसे सीरियल्स के अंदर हमें मैदा और सूजी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है और होल ग्रेन्स और होल व्हीट फ्लावर का ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए। रूट्स एंड ट्यूबर के अंदर क्या था कि जितने भी रूट एंड ट्यूबर की जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि यैम हो गया, कोलोकेसिया हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वो मॉडरेट करना पड़ता है, हमें उसके अमाउंट को कम करना पड़ता है, शुगर के अमाउंट को कम करना पड़ता है, जैसे कि जैगरी, हनी, ग्लूकोज और जितने भी जेलीज हैं, मामलेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड जितने भी शुगर है उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें। अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि ग्राउंड ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वो भी मॉडरेशन में हमें यूज़ करना चाहिए। उनकी अमाउंट हम यूज़ तो कर सकते हैं पर वो कम अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। That's all today's video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.